من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لائق عزت احترام بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، عزت، شان اور اونچا مقام اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. درود اور سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی جینے کا سب سے بہترین طریقہ، ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا. حضرات گرامی قدر، رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کے فضل اور احسان سے پورا ہوا. اللہ نے پھر سے چاہا، ہماری عمریں اللہ کی مرضی کے مطابق لمبی ہوئی تو پھر سے ایک اور مرتبہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان نصیب فرمائے گا. لیکن جو رمضان گزر چکا، رمضان کا جو مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا، اپنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ کر ہم پر بکھیر کر ختم ہو چکا، میں اور آپ اور ہم میں سے سب یہ جانتے ہیں کہ رمضان کا یہ جو مبارک مہینہ آتا ہے، میرے اور آپ کے اندر تقوی کے پودے کو زندہ کرنے کے لیے آتا ہے. تقوی اللہ رب العالمین کا ڈر، خوف، خشیت، اس کے اوامر کی پابندی اور نواہی سے رکنے کا نام ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن رمضان المبارک کے ختم ہونے کے حوالے سے اب جس مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں، اس حوالے سے دو پیغامات میں اپنے لیے اور آپ تمام کے لیے لے کر آیا ہوں. سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ پیغام یہ کہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے اندر تقوی کی بیج کو جگانے کے لیے، تقوی کے پودے کو زندہ کرنے کے لیے، ہمیں متقی بنانے کے لیے، ہم کو خدا ترسی کی زندگی سکھانے کے لیے آیا تھا. اب رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا تو کیا یہ تقوی کی بیج ہمارے اندر گھر کر گئی؟ کیا تقوی کے ذریعے میں اور آپ اپنے اندر اللہ کا خوف اور اس کی خشیت لے کر زندگی گزارنے والے بن گئے ہیں یا نہیں؟ اب ہم خدا ترسی کی زندگی کی راہ پر چل رہے ہیں یا نہیں؟ اس سوال کے ساتھ میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. دیکھیں، اس پوری کائنات کا اور مجھے اور آپ کا، ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت ہے. اللہ نے مجھے، آپ کو اور ہم تمام کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں. یہ ہمارا بچہ جانتا ہے. اور اس پوری کائنات کو جو اللہ نے بسایا ہے، یہ سورج اور چاند کا جو نظام اللہ چلاتا ہے، یہاں زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا،
हमारे लिए जीने रहने के लिए जितनी बड़ी दुनिया बनाई, इस दुनिया के बनाने का मकसद भी बंदा अल्लाह की इबादत करने वाला बन जाए। ये हकीकत है और इस हकीकत से हम आशना हैं। लेकिन जहां हम इस हकीकत से वाकिफियत रखते हैं, खुतबा मसनूना में जो आयत आप हज़रात के सामने पढ़ी गई, उस आयत को मिलाकर इस हकीकत को समझने की कोशिश करें कि अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा किया ताकि हम इबादत गुजार बंदे बन सकें। और खुतबा मसनूना में खुतबा मसनूना में जो आयत पढ़ी गई, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ लोगों, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, उअबुदू रब्बकुम, तुम उस रब की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमको पैदा करने के साथ साथ तुमसे पहले जो लोग गुजर चुके उनको भी अल्लाह ही ने पैदा किया। तो मालूम ये हुआ कि हमें और हमसे पहले जितने लोग गुजर गए हैं सबका खालिक अल्लाह है, और जब सबका खालिक अल्लाह है तो अल्लाह रब करार पाया, और जब अल्लाह रब करार पाया तो मुझे और आपको उसी की इबादत करनी चाहिए। आखिर में अल्लाह ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब इस आयत के वसी पैमाने को समझें। अल्लाह कह रहा है कि तुम इबादत करो उस रब की जिसने तुमको पैदा किया, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और एक तरफ हम ये देखते हैं कि रमजान का महीना आया और हमारे अंदर, और हमने रमजान के रोजे रखे, इसलिए रखे ताकि हम मुत्तकी बन जाएं। और ये हकीकत जिससे हमारी बात का आगाज हुआ कि इस दुनिया में पैदाइश करने किए जाने का मकसद अल्लाह की इबादत है, और अल्लाह कहता है कि तुमको इबादत इसलिए करनी चाहिए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस पूरी हकीकत को जोड़कर आप समझें तो एक जुमले में उसको यूं बयान किया जा सकता है कि मेरे और आपके पैदा किए जाने का मकसद हमको मुत्तकी बनाना है। मैं और आप और ये पूरी दुनिया इसीलिए कायम हुई है ताकि मैं और आप खुदा तर्जी की जिंदगी जीना सीख लें। इसीलिए पैदा किए गए हैं ताकि हम मुत्तकी बन जाएं। इबादत का मकसद, पैदाइश का मकसद इबादत है, और इबादत का मकसद तकवा है। तो मुझे और आपको अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया ताकि हम मुत्तकी बन जाएं। ये हकीकत हम जानते थे कि हमारी पैदाइश का मकसद इबादत है, लेकिन इस मकसद को और इस हकीकत को और इस गायत को भी मुझे और आपको समझना होगा कि इबादत का मकसद अल्लाह का तकवा है। जब तक हमारे दिलों में अल्लाह का तकवा नहीं आएगा, हमारी इबादतें बेकार हैं। जब तक हमारे दिलों में अल्लाह का तकवा नहीं आएगा, तब हमारे कदम गुनाह की तरफ जाने से नहीं रुकेंगे। जब तक हमारे दिलों में अल्लाह का तकवा नहीं आएगा, हलाल और हराम की तमीज हम भूल जाएंगे। जब तक हमारे दिलों में अल्लाह का तकवा नहीं आएगा, तो बड़े से बड़े गुनाह करने से हम ना घबराएंगे, ना डरेंगे, ना अल्लाह की जात का खौफ करेंगे। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इसीलिए पैदा किया ताकि हम मुत्तकी बने। और अल्लाह का तकवा आप देखें, अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगियों को आप पढ़कर देखें। जितने भी अंबिया आए इस दुनिया में, उनका मकसद ये था ताकि वो लोगों को तकवे का पैगाम सुनाए। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फक़ाल या कौम अअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफला तत्तक़ून। नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम के लोगों को ये समझाते हैं, बताते हैं कि तुम लोग अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते और अपने आप को और अल्लाह का तकवा क्यों नहीं इख्तियार करते। वइज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूह अला तत्तक़ून। सूरह शुअरा में अल्लाह ताला ने बहुत सारे अंबिया का जिक्र किया। हर नबी की दावत का यही पैगाम, यही उसलूब और यही अंदाज नकल किया। नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम से कहते हैं, इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूह अला तत्तक़ून। हूद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने ये कहा कि इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूद अला तत्तक़ून। ऐसे ही अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिह अला तत्तक़ून। फिर अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही कहा कि इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूत अला तत्तक़ून। फिर शुआइब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने यही कहा, इज़ क़ाल लहुम शुआइब अला तत्तक़ून। ये अंबिया अलैहिस्सलाम अलग अलग दौर में, अलग अलग जमाने और अलग अलग इलाके में आए, लेकिन जो भी जहां भी जिस इलाके में और जिस जमाने में आया, उसने अपने कौम को यही तक़वे का सबक सिखाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरे और आपके लिए शरीयत इस्लाम में जितनी तालीमात बिखेर गए, जितनी रोशन तालीमात और ऐसी रोशन शाहरा पर मुझे और आपको छोड़ गए हैं कि जिस पर चलकर मैं अपनी दुनिया, अपनी खबर और अपनी आखिरत बेहतर बना सकते हैं मैं और आप,
इसकी तालीमात पर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर लम्हा हमें तक़वे की वसीयत की गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की वाज़ और खुतबों में 3-3 बार तक़वे की आयतें पढ़ते हैं, हर जुमा पढ़ते हैं। वाज़ और नसीहत की मजलिस हो या निकाह ख़ानी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तंबीह और आगाही का कोई मौका पाते तो वहां तक़वे की वसीयत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तक़वे के बीच को सहाबा के दिलों में इस कदर पैवस्त किया कि हम जब सुनते हैं सहाबा के वाक़यात को, तो जब ये सही सनद से अगर ये वाक़यात हमारे सामने मौजूद न होते या हम तक नहीं पहुंचते तो ऐसा महसूस होता कि ये एक कहानियां है, ये ऐसी ये हकीकी और सच्ची वाक़यात नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं जब उनकी जिंदगियों को पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी ने इनके दिलों में तक़वे का ऐसा बीज जगाया। मदीना की गलियों में शराब की नहरें बहने लगी। कब? जब हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में शराब का दौर चल रहा था। सही बुखारी की रिवायत, इसमें पूरा लंबा वाक़या मज़कूर है। एक मुनादी ऐलान करने वाला आता है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबको शराब पिला रहे होते हैं। आकर ये बताता है कि अल्लाह के नबी ने शराब को हराम करार दिया और एक आवाज लगाने वाले को और खबर करने वाले को अल्लाह के नबी ने कहकर भेज दिया है ताकि सारे लोगों को इत्तला हो जाए कि आज से अब से शराब हराम हो गई। क्या मजाल थी, अल्लाह के नबी ने भेजा एक मुनादी को जिसकी आवाज जिसके भी कानों में पड़ती वो शराब वहीं से उसी लम्हा छोड़ दिया उसने। तो ये देखिए कैफियत जो सहाबा के अंदर आई। ना वहां पर महकमा ना वहां पर कोई ऐसी एजेंसी थी जो खबर रसा एजेंसी जो अल्लाह के नबी को मुखबिरी कर देती। जो आज हमारे दरमियान अगर हम अपने तक़वे की बात करें तो ऐसा मालूम होता है कि हम 4 दीवारी बंद कमरे के अंदर जिस अंदाज की जिंदगी गुजारते हैं या अपने गली मोहल्ले पड़ोस में अगर 4 मोहल्ला बंद कर दिया जाए तो अंदर जो जैसा हम चाहे कर सकते हैं। लेकिन सहाबा किराम ने अल्लाह ताला की तालीमात को जैसा और जब उन्होंने अपने कानों से सुना उसी वक्त रुक गए। ये कब मुमकिन हुआ? ये जब अल्लाह का तक़वा उनके दिलों में जाग रहा था उस वक्त मुमकिन हुआ। अगर रमजान के रोजों का असल सबक तक़वा मैं और आप नहीं लेंगे तो हमारे लिए भी अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का कोई रास्ता सामने नजर नहीं आएगा। अपने आप को और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसी तक़वे के जरिए से मुमकिन है, जिसकी तालीमात या जिसकी हिदायत हर नबी अपने कौम के लोगों को देते हुए गए थे। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के पास एक आदमी आया और उसने अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से ये अर्ज की, दरखास्त की कि आप मुझे कोई ऐसी नसीहत करें जिससे मेरी दीन और दुनिया दोनों बेहतर हो सके। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह उस आदमी को ये बताते हैं कि उस नसीहत से, उस वसीयत से बढ़कर और क्या नसीहत हो सकती है जो अल्लाह ने तमाम के लिए की। वो नसीहत ये थी, वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह। अल्लाह ने इस बात की वसीयत कर रखी थी तुमसे पहले वाले लोगों पर भी जिन पर अल्लाह ने किताबें नाजिल की, यानी हमसे पहले वाले जो ईमान वाले लोग गुजर चुके हैं उन पर भी और हम पर भी अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया, हमें इस बात पर मामूर किया कि हम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें। ये अल्लाह का तक़वा क्या चीज है? ये अल्लाह का तक़वा अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह की खशियत है, अल्लाह के अजाब का डर है। अल्लाह ने जो दर्दनाक जहन्नम की आग बनाई है उसका डर तक़वा है। अहले इल्म ने मुख्तलिफ अंदाज में तक़वा की वज़ाहत बयान फरमाई। अबुल कलाम आज़ाद जो मुफस्सिर कुरान है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह लिखते हैं कि लोगों के 2 कैफियत हैं। लोग 2 तरह के होते हैं, 2 हालात, यानी 2 अलग अलग अंदाज की कैफियत और फितरत रखने वाले लोग हैं। एक तरह के लोग वो हैं जो मोहतात जिंदगी गुजारते हैं, जहां गुनाह देखा अपने कदम रोक लिए, जहां नेकी का दरवाजा देखा वहां से दाखिल हो गए। मोहतात किस्म के लोग होते हैं, सोचकर समझकर नफा और नुकसान का अंदाजा लगाकर उरूज और ज़वाल की खबर रखकर अपना मामला करते हैं। ये मोहतात मिजाज के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेपरवाह और लापरवाही की जिंदगी गुजारते हैं, उनको जो हाथ लगा वो खा लेते हैं, हलाल और हराम की तमीज नहीं करते, जहां उनका मन चाहा वहां चले गए, जिस रुख पर भी जो ले जाना चाहता है दिल करता है लोग चले जाते हैं। आज हमारे दरमियान ऐसे ही लोगों की कसरत पाई जाती है। हमारे दरमियान जो हलाल और हराम का फर्क खत्म हो चुका है,
لوگ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو حرام کے نیوالے کھلا رہے ہیں اور یہ محسوس اور ان کو ایسا کرنا پسند آنے لگا ہے. اور جب انسان کو کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے, کوئی چیز ان کو پسند ہو جاتی ہے, دوسروں کا مال اپنا بنانے کی فکر میں انسان نے حدود کی پامالی کر لی اور حلال اور حرام کی ساری تمیزیں ختم کر لی, اور اس سے انسان کے اندر ایسی خواہش جاگتی ہے کہ اس خواہش کی طلب میں وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حلال اور حرام جن چیزوں کو اللہ نے شریعت میں حلال کیا ہے, جن کو حرام قرار دیا ہے, ان چیزوں کا فرق اگر ہمارے اندر نہیں آئے گا تو جان لیجیے کہ ہم متقی نہیں ہیں. اگر ان چیزوں کا فرق آئے گا اور اسی فرق کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو رمضان جو آیا اور ہم کو تقوی کا سبق پڑھا گیا, یہی اصل سبق ہم نے رمضان کے روزوں سے حاصل کیا. اگر ہم رمضان کے بعد بھی ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں جیسا لاپرواہی اور بے پرواہی کی زندگی, حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے, بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کا کوئی احساس ہمارے اندر نہیں ہے, نیکیاں کرنے کا جوش ہمارے اندر ختم ہو گیا, تو ہمارے اندر تقوی نہیں ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں آپ پڑھیں, آپ کو معلوم پڑے گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف ان يقع عليه. مومن کی مثال, دو مثالیں اللہ کے نبی نے دی. یہ دو مثالیں ایک متقی کی اور ایک فاسق اور فاجر, یا سمجھ لیجئے کہ ہم جیسے لوگوں کی مثال دی. ایک متقی کی مثال اللہ کے نبی نے یہ دی کہ ایک مومن جب وہ گناہ کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ وہ جب وہ گناہ کرتا ہے کأنہ قائد تحت جبل, کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. یخاف ان یقع علیہ, گناہ کرنے کے بعد اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا پہاڑ جس کے نیچے وہ بیٹھا ہے, یہ پہاڑ اس پر گر پڑے گا, ایسا خوف اس کے اندر محسوس کرتا ہے. اور جب بندہ اپنے اندر یہ خوف محسوس کرتا ہے وہی اصل میں ایمان والا ہے. اور فاجر کی مثال اللہ کے نبی نے دی وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ ذُبَابٌ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ. اور فاجر کی مثال ایسی ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کو, کہ ایک ناک پر اس کی مکھی بیٹھی تھی, اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ مکھی اڑ گئی. اتنا ہلکے میں وہ گناہ کو لیتا ہے. اب رک کر اپنے آپ کا جائزہ لیں, اپنے سماج اور معاشرے اور اپنے گھر کا اور اپنے گھر والوں کا جائزہ لیں کہ ہم بڑے بڑے گناہ کس آسانی اور کتنے ہلکے پن سے کر دیتے ہیں. نہ خوف ہوتا ہے, نہ یہ احساس جاگتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ہم دوچار ہوں گے, اللہ کا غضب ہم پر آ گر سکتا ہے, اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو سکتے ہیں, رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ ہم پر سے رک سکتا ہے. اس بات کا احساس ہمارے اندر نہیں ہے. یہ احساس آنا چاہیے. میں اپنے لیے بھی اور آپ تمام کے لیے بھی اسی بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو تقوی کی زندگی گزارنے والا بنائے, ہم کو متقی بنائے. خدا ترسی اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے. دیکھیں یہ صحابہ کرام ہیں جو بڑے بڑے گناہ جب کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتے ہیں کہ انکم لتعلمون اعمالا ہی ادق فی اعیننا من الشعر. تم لوگ جن اعمال کو آج انجام دیتے ہو, یعنی جو گناہ تم سے سرزد ہوتے ہیں اور جو سماج اور معاشرہ گناہوں کی لت میں گھرا ہوا ہے, ان گناہوں کے بارے میں حضرات صحابہ کرام اس دور میں یہ بتاتے ہیں. یہ اس دور کی بات ہے. آج کے دور کے گناہ اگر صحابہ کے علم میں ہوتے یا صحابہ دیکھتے تو اللہ عالم کیا کہتے. یہ ہم سے پہلے کے دور کے لوگوں کی بات صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں کہ جو گناہ تم کرتے ہو انہی گناہوں کو ہم اپنے جو بال سے بھی, بال لوگوں کی کوئی کٹے ہوئے بالوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, تو تم بال سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ان گناہوں کو انکم لتعلمون اعمالا ہی ادق فی اعیننا من الشعر, کہ جن گناہ بڑے بڑے گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو, یہ ہمارے نزدیک بال سے زیادہ باریک گناہوں کی اہمیت رکھتے تھے. ان گناہوں کو ہم اللہ کے نبی کے دور میں موبقات, ہلاک ہونے والے گناہ سمجھتے تھے, جن کو تم آج ہلکے کمتر اور معمولی سمجھتے ہو. یہ اللہ کے نبی کے دور میں ہم اس کو ہلاک کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے. یہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں. اللہ رب العالمین نے ایک پیمانہ قرآن کریم میں مجھے اور آپ کو دیا تاکہ اس پیمانے کو اگر ہم حاصل کریں تو وہ پیمانہ میرے اور آپ کے اندر بھی صحابہ جیسا تقویٰ پیدا کرا سکتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو لشکر کے امیر بنا کر کسرا, جو اس وقت کا سپر پاور حکومت کرنے والا, آج کی جو سپر پاور ہے ان کے مقابلے میں اس دور کے لوگ اور زیادہ طاقت اور قوت رکھتے تھے,
क्योंकि आज के मुसलमानों के मुकाबले में उस दौर के मुसलमान ज्यादा ईमानी कुव्वत रखने वाले थे। उन सहाबा किराम को हजरत साद बिन अबी वक्कास को किसरा फतह करने के लिए जब भेजा और अपने उनके लश्कर का जब उनको अमीर बनाया, उनको इस बात की वसीयत की कि या साद उसी का तक़वल्लाह, कि मैं तुमको और तुम्हारा जो लश्कर है इस लश्कर को अल्लाह के तक़वे की वसीयत करता हूँ। तो और बताया कि अल्लाह का तक़वा ही हमको दुश्मन पर फौक़ियत दे सकता है। दुश्मन के गुनाह और हमारा तक़वा दोनों जब आपस में टकराते हैं तो दुश्मन के गुनाह हमारे तक़वे के मुकाबले में कमजोर हो जाते हैं और हमको कुव्वत नसीब होती है, अल्लाह की मदद आती है। लेकिन जब हम तक़वा छोड़ दें और गुनाह में दुश्मन के बराबर हो जाएं तो मुमकिन है कि दुश्मन की ताकत हमसे ज्यादा हो और वो हम पर गालिब आ जाए और हम मग़लूब हो जाएं। तो दुश्मन पर कुव्वत पाने के लिए सहाबा ने तक़वे को हथियार बनाया। अगर हम भी अपने अंदर अपने किसी भी मामले में कामयाबी का रास्ता तय करना चाहते हैं तो ये सहाबा किराम का बताया हुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस बात की इनको तालीम दी, जो उन्होंने अल्लाह के नबी से सीखा, वो यही तक़वे का पैगाम है। इस पैगाम के जरिए से हम अपनी जिंदगियों को बेहतर जिंदगी बना सकते हैं। हम जानते हैं कि जिस तरह का माहौल है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुई हमारे सदन में, इस हवाले से मुसलमान इस बात से तशवीश या खदशे या खौफ ज़दा है कि अब आगे क्या होगा। आगे वही होगा जो अगर हम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेंगे तो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाले मुत्तकी बंदों के साथ क्या होता है, वही मामला मेरा और आपका होगा। आप देखिए, दो चीजें, दो पैगामात मैं आपके पास लेकर आया था आज। पहला पैगाम ये कि हम इसलिए पैदा किए गए ताकि अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह की इबादत का जो मकसद है वो तक़वा है। तो कुल मिलाकर ये कि बंदा इसलिए पैदा किया गया ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, और रमजान जो गुजरा वो इसीलिए ताकि हम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाले बन जाएं। ये पहला पैगाम था। दूसरा जो पैगाम था वो ये कि रोजे के हवाले से मैं और आप ये जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे का जो बदला रखा है वो किसी के सामने वाज़ेह नहीं किया, उसको अपने पास रखा। और ये मैं और आप बार बार ये हदीसें सुन चुके हैं। कुल्लु अमल इब्न आदम लहू, हर अमल जो बंदा करता है वो बंदा उसके लिए अपने लिए करता है, इल्ला सियाम, मगर रोजे के अलावा, तो हुवा ली व अना अज़्ज़ी बिही, क्योंकि रोजा बंदा मेरे लिए रखता है और मैं ही इसका बदला दूंगा। तो मालूम ये हुआ कि बंदे रमजान के फर्ज रोजे जो रखते हैं, इस रोजे रखने का जो अजर और सवाब है, इसकी कमियत, ये कितना सवाब मिलेगा, कितना ज्यादा सवाब मिलेगा, इसका सही अंदाजा सिवाय अल्लाह के किसी और के पास नहीं। तो मालूम ये हुआ कि रमजान के रोजे बहुत ज्यादा अजर के मुतहम्मिल हैं, इतना ज्यादा अजर कि अल्लाह जितना चाहता है दे सकता है। तो कुछ आमाल शरीयत इस्लाम में ऐसे बयान किए गए हैं, कुछ आमाल शरीयत इस्लाम में ऐसे बयान किए गए हैं जो इसी मकाम और मर्तबे का बराबरी रखते हैं, इसी दर्जे और रुतबे पर आते हैं। रमजान के रोजों का सवाब सिर्फ अल्लाह जानता है कि अल्लाह जितना चाहता है दे सकता है। वैसे ही एक और चीज है, लेकिन वो इबादत दिल से ताल्लुक रखती है। अगर उस इबादत को हम अंजाम देंगे तो उस इबादत का अजर भी इतना ज्यादा है कि जिसका बदला सिर्फ अल्लाह जानता है कि अल्लाह जितना चाहे दे सकता है। तो कुछ अमाल ऐसे हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ एक अमल आपको बता पाऊं कि रमजान के रोजों का अजर अल्लाह ही जानता है कितना देगा। वैसे ही एक और अमल है जिसका अजर सिर्फ अल्लाह जानता है कि कितना मिलने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सब्र करने वालों का अजर अल्लाह ने इतना लिखा है कि उनको बगैर हिसाब के कोई अंदाजा वो नहीं कर सकते कि उनको इस सब्र के बदले कितना सवाब मिलने वाला है। देखें, ये सब्र मेरे और आपके अंदर तक़वे का बीज पैदा करता है। रमजान का जो महीना गुजरा, इस महीने ने मेरे और आपके अंदर सब्र का सबक पढ़ाया। हमारे सामने खाना मौजूद था लेकिन हम खाते नहीं थे, क्योंकि हम जानते थे कि ये अल्लाह ने मना किया है, सब्र करते थे। इसी सब्र की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपको, मुझे और आपको इतना सवाब देने का अल्लाह ने वादा किया जिसका कोई हिसाब और किताब नहीं। जब इस तरह की कोई साजिशें, कोई हुकूमतें
हमारे खिलाफ साजिशें करती हैं, हमारा जीना दोभर करते हैं, हमारी जिंदगी को दुश्वार कुन बनाना चाहते हैं, मसाइल का जंगल बनाना चाहते हैं, तो मुझे और आपको सब्र का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि इसी सब्र के लिए, सब्र की बुनियाद पर अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की वइन तस्बिरू व तत्तकू, दो चीजें आज के हमारे सूबे का मौजू थी, एक तकवा, दूसरी की सब्र। ये दो चीजें जिस बंदे को हासिल होंगी उसके बारे में अल्लाह कहता है वइन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम सब्र करने वाले बन जाओ, व तत्तकू, और अल्लाह का हकीकी मानों में तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ, ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तो वो जितनी साजिशें, जितनी चालबाजियां, जितनी मक्कारियां और जिस भी अंदाज की तुम्हारे खिलाफ कार्रवाइयां करना चाहे, तुमको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ला यज़ुर्रुहुम कैदुहुम शैआ, उनकी चालबाजियां, उनकी मक्कारियां, उनकी साजिशें तुम्हारे खिलाफ कोई काम नहीं करेंगी। कब? जब तुम अपने अंदर तकवा पैदा करो और अपने अंदर सब्र का मादा पैदा करो। ये तकवा और सब्र बंदे की जिंदगी के लिए एक अजीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसी इबादतें हैं कि जिसको बंदा अंजाम देगा, अल्लाह की मदद उसकी बंदों के लिए आती है। जंग बदर के मामले में भी अल्लाह ने यही तकवा और सब्र का मामला बताया कि जिनके अंदर सब्र और तकवा होगा, अल्लाह ताला उनको आसमान से फरिश्ते भेजकर उनकी मदद फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवा और सब्र इख्तियार करने वालों को ऐसा अजर और ऐसा सवाब देने का अल्लाह ने वादा किया जिसका कोई हिसाब और किताब नहीं। तो ऐसे मौके पर जब भी हालात मुसलमानों के खिलाफ तंग होते हैं, तो हमें अपने आप का जायजा लेना पड़ेगा, अपने आप में तकवे का हिसाब लगाना पड़ेगा कि हमारे अंदर अल्लाह का वो तकवा जिंदा है, जिस तकवे की बुनियाद पर हमारे दिल में जब हम गुनाह करते हैं तो हम अल्लाह का तकवा हमको गुनाह से रोकने में कामयाब हो सकता है। तकवा एक ऐसी कैफियत का नाम है जब बंदे के दिल में होती है। जब बंदे के अंदर ये तकवे की कैफियत पाई जाए तो वो गुनाह करने के वक्त रुक जाता है, ये कैफियत उसको रोकने में मदद करती है। और जब ये कैफियत कमजोर पड़ जाती है, तकवे का कोई असर हमारे दिलों पर नहीं होता, तो गुनाह करने में हमको कोई झिझक महसूस नहीं होता। अल्लाह की नाफरमानियां करने से हम रुकते और थकते नहीं, और नेकियां करने में हमेशा पीछे और सुस्ती का मुजाहरा करते रहेंगे। ये सब उस वक्त होगा जब हम तकवे के बाब में पीछे रहेंगे। तकवे के बाब में जब हम आगे रहेंगे, हमारी रफ्तार तकवे की उसी कदर होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लाह से ऐसा डरो हक़ तुक़ातिह, जैसे तकवा इख्तियार करने का हक है। अल्लाह से जैसे डरा जाए वैसे डरने का नाम तकवा है। तकवा पूरे जुमले, पूरी तकवे को अगर एक लफ्ज में कहा जाए तो तकवे का नाम है इस्लाम है। यानी इस्लाम की जितनी तालीमात है उनकी पाबंदी करने का नाम तकवा। इस्लाम ने जितनी चीजों को मना किया उनसे रुकने का नाम तकवा है। यही तकवा हमारी और आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेंगे, अल्लाह ऐसे लोगों को बाहर निकलने का रास्ता बताएगा। मुसीबत हो, परेशानी हो, तंगदस्ती हो, या ऐसी बीमारी जिससे पीछा नहीं छूटता, या ऐसे मसाइल और मुश्किलात जो हमारी जिंदगी में लगे हुए हैं, या ऐसे नुकसानात जो जिससे हम हमेशा दो चार हैं, इन सब से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो वो तकवा है। इसी तकवे की बुनियाद पर अल्लाह ताला मुझे और आपको मखरज दिखाएगा, बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा, कहां से एग्जिट लिया जाए अल्लाह दिखाएगा। मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मखरज को दिखाने के साथ साथ वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह ऐसी जगहों से उनको रिस्क भी देगा जिसका ना उनको अंदाजा होगा ना गुमान होगा। रिस्क के बाद में जो लोग परेशान हैं, कमाने के बावजूद जिनके पास आमदनी ज्यादा होने के बावजूद भी जिनके घर बरकत से खाली हैं, जिनके पास बहुत सारा माल होने के बावजूद भी रातों को चैन से नींद नहीं आती, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम सुनने का है। उनको इस पैगाम से अपना जायजा लेना चाहिए, ताकि इसी तकवे के सबब सहाबा किराम की उसकी जिंदगियों में पढ़े आपको मालूम होगा जब मक्का के काफिरों ने मुसलमानों को तड़पाया, सताया, उनको जीना मुश्किल कर दिया मक्का में, तो सहाबा ने क्या किया? मदीना हिजरत की है। मदीना हिजरत करने की कैफियत को आप गौर करें, एक एक सहाबी की जिंदगी इस कदर नुमायां है और हमारे लिए ये पैगाम रखती है कि बहुत सारे सहाबा इकराम ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी बसी बनाई हुई दुनिया,
جس میں وہ آباد تھے، اپنا سارا مال اور جائیداد چھوڑ دیا، صرف اسی لیے چھوڑا تاکہ وہ اپنے دل میں تقوی کی بیج کو زندہ رکھ سکیں۔ جب چھوڑ کر جا رہے تھے تو ان کے سامنے اندھیرا، ان کو دنیاوی طور پر معاشی حالت کے اعتبار سے ان کو اپنے سامنے اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی اور وہ آگے بڑھے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا پرست لوگ ہیں، اسی حوالے سے اگر ہم جب دیکھیں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ وہ اپنے سامنے اندھیرا دیکھ رہے تھے، نانے شبینا کے وہ محتاج تھے، کھانے کو کھانا نہیں تھا، ان کے پاس پکا چھت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی وہ چھوڑ کر اللہ کے لیے، اللہ کا تقوی باقی رکھنے کے لیے چھوڑ کر جب گئے تو اللہ رب العالمین نے غضبان، عروہ بن غضبان یہ بتاتے ہیں کہ ہم جب نکلے تھے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آج ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی علاقے کا امیر ہے، کسی نہ کسی علاقے کا گورنر ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی تعلق سے حکمرانی پر قائد ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کیونکہ ہم نے تقوی کو اپنی بنیاد بنایا۔ اگر جس وقت ان لوگوں نے تقوی کا سہارا چھوڑ دیا یا تقوی ان کے دلوں سے باہر نکلنے لگا تو انہوں نے اس دنیا کے عہدوں کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اللہ کا تقوی ہوتا ہے، اللہ اس کو سب دیتا ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہے اللہ کا تقوی نہیں ہے تو گویا یہ محسوس کریں کہ ہمارا اس دنیا میں آنا بیکار ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ جب ہم سب کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اللہ کا تقوی نہیں رکھتے تو میری اور آپ کی زندگی بیکار کی زندگی ہے، اور اس بیکار کی زندگی کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اور اس پوری کائنات کو اللہ نے نہیں بنایا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان جو آ کر گزر گیا اس نے اپنے اندر جو سبق پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اس تقوی کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اسی کے مطابق اللہ رب العالمین کی عطا کی گئی نعمتوں کو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شفا یابی عطا فرمائے، جن کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔